Peace and blessings, everyone. This is me, Saira Iqbal Khan, from the Office of Corporate Linkages and Placements. And on behalf of OCLP, I welcome you all to this webinar, which has been organized in collaboration with ITC, leading IT software firm of Pakistan. And the topic of discussion today will be career success is both earned and learned. This webinar is arranged under the umbrella of OCLP Digital, an exclusive digital platform which OCLP has created for the engagement of industry and academia to groom them and to aware them about the emerging trends and challenges of the industry, and also to aware them and orient them about the expectations of the industry. The purpose of today's session is basically to help the students and the future leaders, which is basically the youth, the Generation Z and millennials, to help them, emerge as winners in their careers and to help them overcome the fear of failure and to, ingrain optimism and, positivity in them so that, they can emerge as winners without any kind of fear. And for the same purpose, in collaboration with ITC, which is basically a leading IT firm of Pakistan, and they have taken an exclusive virtual motivational series initiative under which, this session is being organized. So prior to the initiation of the session, I would like to formally introduce the speaker of the session today, Ms. Zara Sami, who's basically the Program Manager Academics at ITC. And at ITC, I told you, is a leading IT firm of Pakistan, which with core focus on global payment processing. They have, emerged as a global company with 1,000+ people, and they have, associations, and they're working, with card associations like Visa and Mastercard, and they have deployed, their technologies in 17 different languages, and they are operating in 216 different territories. So it's a global firm on its way to be the first unicorn of Pakistan. So and I would like to hand over the session to Ms. Zara Sami, and she will take it forward from there. Thank you. Okay. Assalamu alaikum everyone. Thank you Saira for beautiful introduction. And मैं थोड़ा सा इसके अंदर और कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगी. अच्छा, पहले तो मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से रिस्पांस चाहिए. मुझे बताइए कि मेजॉरिटी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ ज्वाइन इन कर रहे हैं, कुछ उसको लीव कर रहे हैं. तो मेजॉरिटी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, स्टडी बैकग्राउंड से, किस डिपार्टमेंट से हैं और किस मोस्टली जो हैं वो कौन से सेमेस्टर से हैं. कोई मुझे एक दो आंसर कर सकते. So basically UMT is a premium general university, so we have students from all the disciplines, and we kept it open for the students from all the semesters and all the domains. So you will be finding a mix of different disciplines in the audience today. Okay. अच्छा, मुझे ये सायरा प्लीज जरा गाइड कीजिएगा. मैं अपना थोड़ा मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा हम जो अपना जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो उसके लिए हम अगर कुछ और, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी स्टिल ज्वाइनिंग के लिए, तो हम 5-10 मिनट्स उनके लिए वेट करें या हमें स्टार्ट करना है, या अभी हम मतलब फौरन स्टार्ट करें इसको. I guess you start the session and students will keep on joining. Okay, ठीक है. ओके, जैसे आपको सायरा ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट I2C, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि I2C ने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है एकेडेमिया कनेक्ट के नाम से, जिसके थ्रू हम लोग जिसमें हमारा पर्पस है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ. बिकॉज एकेडमिक करियर में हमारे साथ ये बड़ा एक कॉमन ये प्रॉब्लम होता है, जिसमें हमें लगता है कि शायद हमें, और ऐसा होता भी है क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है या हमारा एकेडमिक करियर है वो इंटायरली डिफरेंट होता है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है. बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर को परसू करने के लिए हमारा जो एक स्पेसिफिक डेकोरम है वो बहुत डिफरेंट है. मतलब हमारी जो नॉन प्रोफेशनल लाइफ के लिए उसको जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है. तो बेसिक पर्पस हमारा जो है वो I2C का वो यही है कि हम यूथ को प्रिपेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि
ड्यूरिंग उस सेशन, ड्यूरिंग अपने एकेडमिक करियर वो क्या क्या चीज़ों को जहन में रखते हुए, क्या चीज़ों को किस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड रहें बिफोर एंटरिंग, या समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं तो एज ए एम्प्लॉय हम बहुत हेजिटेट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑल टुगेदर हमारा I2C का जो है ये इनिशिएटिव इस तरह से कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको रीच आउट करें, चाहे वो IT बेस्ड स्टूडेंट्स हों या नॉन IT डिपार्टमेंट से हों। ऑल टुगेदर हम पाकिस्तानी यूथ को जो है वो एक फ्यूचर लीडर्स के लिए पर्सपेक्टिव से जो है वो उसको प्रिपेयर करें। तो जैसे आपको सायरा ने कुछ इंट्रोडक्शन हमारा ये दिया है, सॉरी, ये रिगार्डिंग I2C। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। रिसेंटली मुझे लाइक ये 4 मंथ हुए हैं मैंने I2C को ज्वाइन किए हुए एज ए प्रोग्राम मैनेजर एकेडमिक्स। और पास्ट में आई कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम IBA पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2016। उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए इंडिविजुअल, इवन के मैंने मीडिया में भी एज ए होस्ट जो है वो काम किया। ऑल टुगेदर आई एम जस्ट वर्किंग एज ए स्पीकर फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years। और उसके बाद अभी रिसेंटली आई गॉट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड आई जॉइंड I2C। एंड जैसे कि आपको थोड़ा सा सायरा ने हमारा बैकग्राउंड बताया है कि इट्स अ फिनटेक कंपनी। हम लोग बेसिकली जो है वो प्लास्टिक मनी में डील करते हैं। हम अक्सर ये आपको पता होगा, अक्सर हम जब ATM कार्ड्स या हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इट्स बैंक्स बिहाइंड जो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। ये पूरा ऑल टुगेदर एक सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आउटसोर्स करते हैं। तो बेसिकली I2C जो है वो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स के अंदर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है। बेसिक I2C इज फाउंडेड इन 2001 बाय डॉक्टर आमिर वाइन। और उससे पीछे हमारा लाइक 1986 से हमारी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टिल इट्स इन कराची, जो उससे पहले से है। उसके बाद I2C जो है इट्स फाउंडेड इन 2001 इन कैलिफोर्निया USA एंड लाइकवाइज इन लाहौर एज वेल। और currently in Lahore office हमारे पास 1000 plus employees हैं। We have offices around the globe, Silicon Valley, Lahore, Singapore, Dubai, Sydney, Montreal, Saint Antonio। और global client base जो है हमारे global client base like we have reach in 6 continents, 25 countries। और products हमारी जो है basically we are providing that for complete payment ecosystem। ये आप देख सकते हैं हमारा I2C का जो मैप है। बेसिकली हम लोग जो है ये ग्लोबल रीच जो है इसके अंदर वी कैन क्लियरली सी दैट कि ऑफिसेस जो हैं वो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, हमारे ऑपरेशनल जो सेंटर्स हैं मॉन्ट्रियल, लाहौर, ओमाहा। और उसके बाद डाटा सेंटर्स जो हैं वो वर्जीनिया, शंघाई और डिफरेंट कंट्रीज में, 3 कंट्रीज में हैं। तो ये बेसिकली एज ए कंपनी, एज ए एज ए इंडिविजुअल हम लोग बेशक आप ये सोचें कि बेशक चाहे आप ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंपनी जो है हमें उनकी तरफ से, जब हम ये चीज़ बड़ा एक चीज़ जो है हमारे जहन में होती है कि हम बिफोर ज्वाइनिंग टू कंपनी हम बहुत सारी चीज़ें अपने बैक एंड पे एक सिक्योर मांगते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि अच्छा अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या वो नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम मतलब हम मेरे बैक एंड पे, बैक सपोर्ट पे कंपनी जो है वो मतलब कितनी स्ट्रांग है, या कंपनी मुझे क्या क्या प्रोवाइड करी। ऑब्वियसली हम भी जो है कंपनी को ऑब्वियसली हम आप टाइम देते हैं, आप कंपनी इनफैक्ट जो भी कंपनी है वो आपको बनाती है, एज इंडिविजुअल बनाती है, एज ए प्रोफेशनल जो आपको ट्रेनिंग देती है। चाहे आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या आपका पास्ट में एक्सपीरियंस है। तो इसमें मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको थोड़े अपने बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि I2C जो है वो अपनी अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कर रही है। इसमें हमारे लॉन्ग सर्विस कैश रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें हम लाइक जो मोर देन 5 years 3 years जो हैं वो हमारी एनुअल जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर हम उनको डिफरेंट फॉर्म्स में उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। फिर हमारे परफॉर्मेंस कैश रिवॉर्ड्स हैं, जिसके थ्रू हमारे, जैसे आप अक्सर हम लोग लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे भी, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखते होंगे कि मैनेजर ऑफ द ईयर या कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के HODs हैं या मैनेजरियल लेवल पे हैं। और उसके बाद हमारा ये है हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें मोस्टली अगर आप कुछ पे करते हैं अपना, सडन आपके साथ कोई मसला आ जाता है या सडन नहीं भी आता तो आपको
वो रिवर्ट बैक हो जाती है, आपका जो भी स्पेंडिंग्स होती हैं आपकी उसके अंदर वो रिवर्ट बैक हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास कंसियर्ज सर्विसेज हैं, जिसके अंदर अगर आप अपने ऑफिस आवर्स के अंदर आप बहुत बिजी हैं, आपको लगता है कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट इन अ सेंस कि बैंक्स के मामलात जैसे होते हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई काम चाहिए, तो हम उनको उनके वर्किंग आवर्स के अंदर वो असिस्टेंस देते हैं कि वो उसको उनको टेबल डेस्क पे आके उसके साथ डील करें और उनको सपोर्ट करें। उसके अलावा हमारे पास आउट पेशेंट हमारा एक बड़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पर मंथ आप लेते हैं, आप कोई मेडिसिन पे हैं तो कंपनी आपको उस पर सपोर्ट करती है। और इन केस अगर आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं, फाइन हैं, तो उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स में वो कोई रेगुलर मेडिसिन पे हैं या आपके स्पाउस में से या आपके चिल्ड्रन में से, तो कंपनी फिर उसको सपोर्ट करती है जिस तरह। और इसको हम आउट पेशेंट जो है वो हमारे उसको आउट पेशेंट में कंसिडर किया जाता है। चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मतलब इट्स वेरी रेयर, जिसमें हम प्राइवेट कंपनीज में स्टार्ट में आपको जो है उसमें आप कंपनी सपोर्ट करती है, स्कूल लेवल पे अलग, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो हम बड़ा एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे ऑब्वियसली हमने एक स्टार्ट लिया होता है, हम अपने ऑल टुगेदर अपने एक्सपेंडिचर्स को मेजर करते हैं। और बीइंग स्टूडेंट हम भी ये चीज़ बिल्कुल फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी उसी जर्नी को परस्यू करके, उसी जर्नी से गुजर के हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, एक बेनिफिट सॉरी है I2C का, जिसमें हम फ्री मील्स देते हैं, मतलब 3 टाइम हमारा फ्री मील होता है। और ऐसे बिकॉज मैं एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम है, ऑन एंड ऑफ मेरा ऑफिस भी चक्कर लगता है। और सबसे अमेजिंग बात जिसमें मुझे बहुत ही एक जो I2C के ऑफिस में जाकर और जो चीज़ अट्रैक्टिव ये चीज़ लगती है मील्स के हवाले से, कि आप किसी भी लेवल पे देख लें वो इतना एक बहुत ही हर चीज़ बड़ी फैसिलिटेटेड आपको प्रोवाइड की जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट मैंने अपने नज़रिए से ये चीज़ फील की उसमें यह है कि हर लेवल पे जो खाना खा रहे हैं वो सब हर लेवल पे वो सेम खाना खा रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही मतलब लग्जेरियस, उसके अंदर आपको हर चीज जो सीजनल चीज है या कोई फ्रूट है या कोई मतलब वेजिटेबल है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन उसके अंदर आप उस तरीके से आपको वो चीज प्रोवाइड की जाती है। फिर हमारे रिक्रिएशनल ट्रिप्स होते हैं और उसके अंदर बड़ी एक अमेजिंग चीज है कि हम एक डिपार्टमेंट से लाइक 2 से 3 लोग, जैसे एक ग्रुप से एक टीम, सेम टीम से 2 से 3 लोग जाते हैं, वो हमारे रिक्रिएशनल ट्रिप्स होते हैं, उसको पूरी फुली फंडेड होते हैं वो I2C की तरफ से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें और बड़ी एक एड ऑन मैं करना चाहूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक जैसे हम अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मिलकर जा रहे होते हैं तो हम कोई ऐसी बस या कुछ इस तरह से हम हायर करते हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे लिए बड़ा ये मुश्किल होता है कि मैं बस पे ट्रेवल करना मेरे लिए। और फिर इवन के I2C आपको एज ए इंडिविजुअल अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए या स्पेशल लाइक आपको एक प्राइवेट कार चाहिए इस तरह से, तो I2C आपको वो भी उसमें भी उसको हेल्प आउट करता है। वो आपको मतलब लाइक आप अपने कोलीग्स के साथ जाना चाह रहे हैं और वो आपको स्पेशल उसमें वो ट्रीटमेंट देता है। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि हम लाइक हम जब जा रहे हैं, आपको भी पता है यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में हम ऑल टुगेदर जा रहे होते हैं, तो समटाइम्स आप भी अपने इर्द गिर्द ये लोग देखते होंगे कि कुछ ना कोई रह जाता है, वो किसी न किसी अपनी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी न किसी ऐसे मसले की वजह से, कोई फिजिकल असिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो हर बंदा उस पे नहीं जा सकता। तो I2C उसको भी कंसर्न समझ अपना एक वो समझती है, कंसर्न समझती है, और उसको स्पेशल जो है वो चीज मतलब उसको कार वगैरह उसको हायर करके देते हैं, और वो फुली आपका जो फंडेड होता है बाय आपकी कंपनी होता है। फिर उसके बाद हमारी पेड लीव्स हैं, लीव इनकैशमेंट पेड लीव्स हैं, जिसके थ्रू आप मतलब लाइक 14 हमारी पेड लीव्स होती हैं आफ्टर योर कंफर्मेशन, जिसके थ्रू आपने जो है वो ईयरली जो है वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने लास्ट ईयर वो उसमें से कुछ नहीं लिया तो वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। फिर उसके अलावा हमारी 10 जो है हमारी सिक लीव्स होती हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी रेवेन्यू शेयर है, जो एक परसेंटेज जो है वो कंपनी शेयर करती है आपके साथ,
जितना आपका डिडक्ट होता है उतना आपके साथ वो शेयर भी करती है कंपनी। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस शेयर होता है, आपको ईयरली जो आपकी बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, उसके ऊपर आपका बेसिक सैलरी के ऊपर जो है वो आपका वो लगता है परफॉर्मेंस शेयर लगता है। उसका मतलब सिस्टमैटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है एवेल्युएट हो रही होती है, और वो आपको जो है वो मतलब लाइक आपको 100% आपकी परफॉर्मेंस है तो 100% ही आपको वो मिलता है। उसके अलावा हमारे ईद बोनसेस हैं, जिसके दौरान लाइक अगर कोई आना चाहे विलिंगली, जो क्योंकि हम ग्लोबली काम कर रहे हैं तो हमारा कोई छुट्टी का दिन ऐसा सच नहीं होता। लाइक मैंने अगर 8 बजे ऑफ किया है तो ऐसा नहीं कि 8 बजे के बाद मुझे फिर भी ईमेल्स आ रहे हुए होते हैं, सब कुछ आ रहा होता है। वो इन द सेंस कि वो मेरे लिए नहीं होते, वो ग्लोबली, क्योंकि हम वो समझें कि वो 24 आवर्स पे, क्योंकि अगर हम ग्लोबली वो उनको डिफरेंट कंट्रीज को उसके अंदर कंसिडर करें तो वो उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, और वो हमारा वो जो 24 आवर्स हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो करते हैं किसी कोई ईद डेज में, ईद हॉलीडेज में भी काम करता है तो उस पर भी हम उसको फुली पेड, और फिर इवन के समटाइम्स जो होता है कि आपके फर्स्ट 2 डेज जो होते हैं ईद हॉलीडेज के, उसके अंदर हम लोग जो है फुल उसको अपनी पर डे सैलरी, डबल सैलरी भी उसको मिलती है। उसके बाद हमारा है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली, मैं समझती हूँ कि जब आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डले हुए हैं अदर देन आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है। और ये तो हमारे सबके साथ ही, अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली अगर अपनी बात करूँ कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मैरिड वुमन, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली पैरेलली देखना होता है। तो ये शायद मेरा एक ये बहुत बड़ा ये भी एक एस्पेक्ट, मैंने तो इस चीज़ को बहुत कंसिडर करते हुए जो है वो I2C को ज्वाइन किया कि लाइक अगर आप थोड़ा सा लेट आए हैं और आपको लगता है कि आप इतने टाइम तक आप उसको कवर अप कर लेंगे, 7 बजे या 8 बजे तक, उसको 11 बजे या 12 बजे आपने ज्वाइन इन किया है, तो I2C जो है वो आपको इस चीज का बिल्कुल वो एक फ्री हैंड देता है कि आपके जो टास्क हैं वो आप अपने वर्किंग आवर्स में और उसके अंदर आपके कंप्लीट होने चाहिए। मेन हमारा कंसर्न जो है वो ये है। उसके अलावा I2C डिफरेंट जो है सर्टिफिकेशंस जो है वो ऑफर करता है, टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होती हैं। अदर देन I2C भी उसके अंदर इन हाउस ट्रेनिंग्स भी होती हैं हमारी, और अदर देन कोई और टेक्निकल सर्टिफिकेशन आप लेना चाहते हैं और आपकी पास्ट आपका एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होते हुए I2C उसको स्पॉन्सर करता है। उसके अलावा हमारे ये हैं प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर जितना आपका डिडक्ट होता है उतनी परसेंटेज कंपनी की तरफ से एड ऑन भी हो रही होती है। उसके बाद हमारी व्हीकल लीज फैसिलिटी है, जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम, अगर आप हमारे ऑफिस में जाकर देखें तो मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो गाड़ियां और स्पेशली बाइक्स जो हैं वो हैं। उसमें हमारे डिफरेंट जो है वो शेयरिंग है, डिफरेंट उसके अंदर परसेंटेजेस हैं। उसके अलावा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है। जिम फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है विद इन ऑफिस, कि आप जब चाहें आप मतलब आपको लगे कि लाइक ब्रेक टाइम में इस तरह से, जैसे वर्किंग आवर्स के अलग अक्सर, क्योंकि ऑफिस आवर्स हमें पता है 8 to 9 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है, तो आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप बिल्कुल फ्री वो जो है वो फैसिलिटेटेड जिम है स्पेशली फॉर मैन या वुमेन, जो भी उसको करना चाहे वो बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन और एक बहुत बड़ी एक ये फैसिलिटी है। आजकल के टाइम पे जब हमें लगता है कि हम बहुत अनफिट हो रहे हैं, हम बहुत ये ऑफिस जॉब कर करके बैठ बैठ के हमारे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके अलावा फिर हमारा डे केयर सेंटर है, और डे केयर सेंटर में हमारे पास इवन के हमारे टीचर्स हैं। मेरे ख्याल से ये मिस्टेकली शायद म्यूट हो गया था जी। अच्छा फैसल, जरा मुझे बताइएगा, कैन यू हियर मी? जी ज़ारा, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें ठीक है, थैंक यू। सो बेसिकली अब डे केयर सेंटर में एक बड़ा अमेजिंग पॉइंट ये है कि ये कोई जेंडर बाइस नहीं है। हमारे इवन के डे केयर सेंटर में जो है वो मेल स्टाफ जो है उनके चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा उसमें हैं, तो इसमें कोई वो जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वुमेन अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो है वो मेल स्टाफ वो नहीं लेकर आ सकता।
तो ये भी एक जब आप अभी तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब आप इंशाल्लाह जब आपकी शादियां हो जाएंगी तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आपको बड़ा अट्रैक्टिव एक पॉइंट नजर आएगा, क्योंकि मुझे मेरे दिल से ये निकल रही है ना चीजें, तो वो फिर उस एक टाइम पे आपको बड़ी ये चीजें अट्रैक्टिव लगेंगी। अच्छा, ये हमारे कुछ जो हैं वो क्लाइंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेजॉरिटी हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं I2C की रिलायबिलिटी का। जैसे कॉमरेका, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका अमेरिका का, जिसके अंदर मोस्टली हम जैसे ओल्ड एज जो हमारी फंडिंग होती है, जो ओल्ड एज हमारे अलाउंसेस होते हैं, वो उनके साथ डील करते हैं। तो बेसिकली अक्सर हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हम शॉपिंग पे जाते हैं या हमारा डेबिट कार्ड जो है वो डाउन हो जाता है और वो काम नहीं कर रहा होता। तो उसमें अक्सर उसमें असल में जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि आपके बैक एंड पे जो है वो सिस्टम्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, इतने रिलायबल नहीं होते। लेकिन जब आप इंटरनेशनली आप किसी से भी आप बात करके देखिए या किसी से पूछ कर देखिए कि कभी ऐसा किसी के साथ कोई हुआ हो कि उनका वो डाउन हो गया हो या उस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा हो। समटाइम हम सोचते हैं, हमें अक्सर ये भी सुनने को मिलता है, जी आज बहुत ज्यादा वो ट्रांजैक्शंस हुई तो स्टक हो गया, इस तरह की चीजें। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाहर आपको बहुत फ्लुएंटली और बड़ा फ्लो में आपको काम करना पड़ता है। बहुत आपका जो रिलायबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं, हम नेक्स्ट है, स्टैक है, उसके बाद जो है कीवी कंपनी है, वो सॉरी कीवी बैंक है। डिफरेंट बैंक्स के साथ पाकिस्तान में हम स्टैंडर्ड चार्टर के साथ उनके साथ हम कर रहे हैं। तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, डिफरेंट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हम डिफरेंट उनके जो है वो उनकी प्लास्टिक मनी में जो है बेसिकली वो हम डील कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है करियर सक्सेस इज बोथ अर्न्ड एंड लर्न्ड। बेसिकली इस टॉपिक का पर्पस क्या है कि हम लोग अक्सर जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसको हमें लगता है कि शायद हमारा अभी ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन असल में वही हमारा राइट टाइम होता है और हमें उसको ग्रैब करना चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए और फर्दर अपनी जो भी आप चीज परसू करना चाहते हैं, जब आप एक चीज को, एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। कोई भी चीज हमारे यहाँ ये बड़ा एक मसला है कि हम एक चीज होती है, हम एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम खुद से ही उसके अंदाजे लगाने बैठ जाते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए नहीं बेहतर है, या हम जो है वो खुद से इमेजिन कर लेते हैं उसने ये किया था तो ये ऐसे हुआ था, उसने ये किया था तो ऐसे हुआ था। तो आज का टॉपिक मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम लर्न करेंगे कुछ डिफरेंट अपनी चीजें कि हम क्या अपनी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो हमें, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बड़ा एक उस पे अलर्ट रहना चाहिए कि हमें कोई भी चीज अवेल करने के लिए आप जब भी चीजों के आप जितना अलर्ट रहते हैं उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी डिसिप्लिन जो है वो लाइफ गुजारते हैं। तो मैं शायद आप में से किसी ने कहीं ना कहीं ये स्टोरी सुनी हो या कहीं पढ़ी हो। और चले मैं आप एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ कि एक गांव था जिसमें दो फार्मर्स थे। एक का नाम अजहर था और एक का नाम यूसुफ था। और उस गांव में काफी अरसे से खुश्क साली, जो ड्राउट जो है वो उसका वो सामना कर रहे थे, जिसके थ्रू जो है उसकी उनकी लैंड्स जो हैं वो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी, बिल्कुल उस पे कोई कोई चीज वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। और आपको पता है कि हमारी जो भी हमारी जिस पे बेस्ड हमारी एक रोजी रोटी है, जिस भी प्लेटफॉर्म के लें या वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये फार्मर को ही, इनफैक्ट मैं एक फार्मर ही बता सकता है ज्यादा बेहतर कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो वो कितना उस पे इफेक्ट होता है ये उसी को बेहतर पता है। तो ऐसा था कि अब क्योंकि बिल्कुल दूर दूर कोई उनको चांस नजर नहीं आ रहा था कि वहां बारिश होगी या किस तरह कोई मतलब लैंड में हम कोई चीज ग्रो कर पाएंगे। तो इसी तरह ऐसा एक दिन हुआ कि यूसुफ उठा, सुबह उठकर देखता है कि अजहर कुछ डिगिंग कर रहा है अपनी लैंड में, एग्रीकल्चर जो उसकी लैंड है उस फील्ड पे खड़ा हुआ है और कुछ डिगिंग कर रहा है। वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो।
वो उसे कहता है कि मैं डैम बना रहा हूँ। खैर वो अंदर ही अंदर हंसता है कि ये क्या करेगा डैम बनाकर। वो चला जाता है, फिर वो अपनी डिगिंग स्टार्ट कर लेता है। फिर वो कुछ वीक्स के बाद फिर देखता है कि वो कुछ कहीं और जगह से भी डिगिंग कर रहा है, और फिर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं डैम बना रहा हूँ, एक और डैम बना रहा हूँ। वो फिर उसको कहता है कि बारिश तो कहीं नहीं है, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो हर जगह पे तो खुश्क है, जमीन खुश्क है, और तुम ये किस लिए कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो तुम? तो वो बड़ा हम्बली उसको आंसर करता है कि रेन इज कमिंग, और फिर दोबारा से डिगिंग स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो फिर से देखता है कि वो फिर से डिगिंग कर रहा है, वो कुछ और बना रहा है, फर्दर चीजें कुछ बना रहा है। फिर बड़े गुस्से में आता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? कहता है मैं एक इरिगेशन सिस्टम बना रहा हूँ। और वो कहता है कि बारिश तो नहीं आई है, तुम क्या कर रहे हो ये? वो फिर उसको बड़ा हम्बली उसको आंसर करता है कि यस, रेन इज कमिंग, और फिर दोबारा से अपने काम पे लग जाता है। और इस तरह से फिर वो अपना जो चीजें होती हैं वो क्रिएट कर लेता है। उसके कुछ एक वीक के बाद जो है वो अचानक से काले बादल छाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब उस टाइम पे जो है वो भी अपनी फसल जो है, जो उसने बीज वगैरह लगाने होते हैं, यूसुफ ने वो भी लगाता है, ये भी लगाता है, और वो अपना सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अच्छा चलो हम लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट कर लिया, हमने कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर मतलब हमें एक पॉजिटिव साइन नजर आ गया कि हाँ अब बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से मतलब कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर दोबारा से वैसे ही खुश्क हो जाता है मौसम, और बारिश नहीं होती। और जो हमने उन्होंने बीज लगाए भी होते हैं, अजहर ने और यूसुफ ने, वो जो है वो अब लैंड क्योंकि ग्रो करनी होती है, अब उसके ऊपर जो भी है हमारा, जो भी हमें क्रॉप्स उगाने हैं या जो भी हमारा है, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो तो आप ऐसा तो नहीं है कि आज आप पानी दे दें तो आप कल नहीं देंगे। तो इनफैक्ट ऐसा ही वो आपको डेली बेसिस पे उसको पानी भी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि वो यूसुफ की जो लैंड होती है वो फिर दोबारा से खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो उसका छोटे पौधे जैसे उगते हैं, आप बीज लगाते हैं तो वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लाइकवाइज अगर हम दूसरी साइड पे उसकी देखें, अजहर की देखें, तो उसकी लैंड वो ग्रो करना शुरू हो जाती है, और एट द एंड उसको डिजायर्ड जो उसकी क्रॉप होती है उसको मिल जाती है। अब यूसुफ उसकी तरफ देखता है और उसकी लैंड की तरफ, और एक ही बात सोचता है जो हम बड़ा कॉमनली सोचते हैं ये चीजें, और बड़ा हमारे एक ये कॉमन स्टेटमेंट है, देखते हैं कि ये कितना खुशकिस्मत है, हाउ लकी ही इज, कि इसने इसको मतलब इस टाइम पे भी इसने वो चीज पा ली जो जिस चीज को उसने जो उसकी डिजायर थी या उसकी नीड थी। ऑन द अदर साइड जब अजहर उसकी लैंड की तरफ देखता है तो वो ये बोलता है कि हाउ फुलिश ही इज, दिस इज द पॉइंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमारे हाँ जो प्रॉब्लम है या कॉमनली जो ही एक ह्यूमन साइकी है, उसमें हम फौरी तौर पे ये चीज देखते हैं कि हमारे बैक एंड पे किसी ने कितनी मेहनत की है, हम वो नहीं देखते। एंड पॉइंट पे उसको क्या मिल गया, वो किस चीज के साथ डील कर रहा है, या उसको क्या चीज किन चीजों के साथ वो फैसिलिटेटेड है, हम वो देखते हैं और हम ये बोलते हैं कि अच्छा ये बहुत खुशकिस्मत है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, हमें पहले से अलर्ट रहना है कि हमारे पैरेलल जो है हम अपने एंड पे क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने एंड पे कौन कौन सी पॉइंट्स को हम जो जिस पे काम कर सकते हैं। हम बिल्कुल अक्सर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, अक्सर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल हमने कोविड जो है वो फेस किया, एक वर्ल्ड पेंडेमिक फेस किया, जिसके बाद मेरे ख्याल से शायद एक वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का मैप जो है वो इस टाइम पे मैं समझती हूँ इकोनॉमिक मैप जो है वो उस एक नई शक्ल जिसने इख्तियार कर ली। लेकिन इवन देन मैंने खुद ये देखा कि इसके अंदर पैरेलल जब चीजें आपकी जाती हैं, पेंडेमिक खत्म हुआ है, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। इवन के I2C ने 100+ जो हैं वो लोग हायर किए हैं ड्यूरिंग 3 मंथ्स, और हमारा 0% जो है उसके अंदर लेआउट है। अब 100+ सॉरी जो लोग हायर किए हैं, एम्प्लॉयज हायर किए हैं I2C ने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक है कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है। ऑन द अदर साइड आपके एंड पे है कि आप कितने वेल कनेक्टेड हैं, आप कितने वेल कनेक्टेड हैं कि आप देख सकें उन अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करते हैं, तो आपके एंड पे कितना है कि आप उन स्पेसिफिक उन प्लेटफॉर्म्स को आप कितना चेक करते हैं, या कितना आप उसके अंदर आप उसको डीपली सर्च आउट करते हैं, सर्चिंग करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, या मुझे इस जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना जो अपने एंड पे जो काम मैक्सिमम काम हम कर सकते हैं, अपने एंड पे जो मैक्सिमम हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, अपने आप को प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड रख सकते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कल ही किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, या मुझे अदर दिन चले हम जॉब से भी हट जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मुझे अगर करना है स्टार्ट, या मुझे लगता है कि अब मुझे पढ़ाई भी कर ली है, अब मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप उसको स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कि आज ये हो गया, आज लाइट चली गई, कल इंटरनेट नहीं आ रहा, परसों ये नहीं हो रहा, वो फिर आपके पास वही एक राइट मोमेंट है, वही जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं, आपको क्यों जो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, आपने कितना उस पर काम किया है। हम अक्सर ऐसा यूथ में भी होता है, ऐसा एक्सपीरियंस लोगों में भी होता है, मैं जरूरी नहीं है कि चले हम, लेकिन यूथ में सिर्फ ये होता है, अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि आप कंपनी में भी आप करें तो मतलब कोई किसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, तो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अब तो खैर बहुत लोगों में स्टूडेंट्स में अवेयरनेस है और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इवन देन कुछ अभी भी परसेंटेज हमारी ऐसी है कि जैसे हमें लगे कि शायद इनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, शायद इनको फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हर कंपनी जो है वो फ्रेश माइंड्स के साथ जो है वो काम करना चाहती है, में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक हम अगर मैं अपनी बात करूं तो 2016 से अब तक, 2016 में मैंने MBA किया और मैं पास आउट हुई, तो अभी ये 4 साल के अंदर अंदर कितनी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अब नई टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो शायद मुझे भी MBA के ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट्स हैं, अब करंटली जो MBA के ग्रेजुएट्स हैं, शायद वो मुझे बता सके कि अब ये चीज नहीं है, अब इसको ऐसे बोलते हैं, ये इसको ऐसे कहते हैं। और एंड ऑब्वियसली कंपनीज जो हैं, कंपनीज तो एक बहुत अपग्रेडेड और अपने एक फास्ट सिस्टम के साथ वो डील कर रही होती हैं, तो उसमें यही होता है कि ऑब्वियसली कंपनीज को जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ वो काम करना चाहती हैं, और उनको सिखाना भी चाहती हैं, और उनको फर्दर उनके टू एंड चीजें होती हैं, आप भी अपने एंड पे आप अपना प्रोफेशनल करियर बना रहे होते हैं, कंपनी आपको बना रही होती है, फैसिलिटेट भी कर रही होती है, और आप कंपनी को भी सर्व कर रहे होते हैं, तो टू एंड हमारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि हमें किन किन चीजों के साथ हमें डील करना चाहिए। सॉरी, मैं अपनी तरह थोड़ी सी बाहर को सेकंड, सॉरी जी। ये इसके अंदर हमारा सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेक द राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स मेड व्हाइल बीइंग कर्जियस। अब इसमें क्या है, हम कहते हैं कि अच्छा कौन सी गलती राइट होती है, कोई एक बंदा अगर मुझे आंसर करना चाहे प्लीज। क्या आपको क्या लगता है कि राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स क्या होती हैं आपके अकॉर्डिंगली, जिसको आपको लगे कि हाँ ये मतलब लाइक ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स है। जी जी बताइए अलिशबा, आपको मेरे ख्याल से अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं मेरे से बात करना चाह रहा। राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स बेसिकली, जी सॉरी बताइए। पहले माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम, वो मिस्टेक जिनसे हम सीख के आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली कोई और एक मेरे ख्याल से और पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी शायद कुछ कहना चाह रही है, उनका नाम नहीं मुझे शो हो रहा। आयजा, जी आयजा आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस वालेकुम मैम, अस्सलाम आयजा। आई हैव अ क्वेश्चन कि एक इंडस्ट्री में एक मार्केटेबल ग्रेजुएट में क्या देखती है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
अच्छा ठीक है आयशा, ये सारे क्वेश्चंस हम प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी, आप हम उस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल मैं आपकी वो क्वेश्चंस पे उस पे मैम भी मैं आप क्वेश्चन रिपीट कर दूं? नहीं मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमारी जो मतलब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, कि एक इंडस्ट्री जो है वो मार्केटेबल ग्रेजुएट्स में क्या देखती है, आप ये पूछना चाह रहे हो। ये क्वेश्चंस जो है वो एंड पे हम इस पे बात करेंगे, अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। मुजफ्फर मुजफ्फर अच्छा मुजफ्फर, आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि मैं सिर्फ एक सवाल किया था कि हम राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स किसको बोलते हैं, हमारी अकॉर्डिंगली क्या है राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि गलती तो गलती होती है, तो सही और गलती क्या होती है। यस सॉरी मैडम, सॉरी बेसिकली आवाज आ रही है जी मैडम? आप बताइए। जी आप आ रही है, आप बताइए। मैं मिस्टेक जो है बेसिकली एक पहला स्टेप होता है कि आप कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं लर्निंग में। कोई भी काम करने से पहले का स्टेप है यही। जब एक बच्चा क्रॉलिंग सीखता है, चाइल्ड एक जब बेबी होता है, किड बिल्कुल। होता है, तो वो भी गलतियां करके ही सीखता है, गलत करता है करते करते। तो मैं समझता हूँ कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम फर्स्ट टाइम एंटर होते आप हैं, थोड़ा तो सा हमें आप माइक के उसको जरा करीब सीखने हो के लिए जाइए। मिस्टेक ही जी जी पहला स्टेप है। या तो बिल्कुल, पहले थैंक स्टेप यू हमें यही मुजफ्फर। होना चाहिए हमारे नज़दीक कि हम, या थैंक यू मैडम, ये मिस्टेक को हम करें, मतलब ठीक है बिल्कुल। कीप इन माइंड। बिल्कुल सही है, मुजफ्फर ने भी सही कहा और अलिशबा ने भी सही बोला। असल में ये है कि राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स की जिससे आप हम उसका क्रक्स यही निकालेंगे कि जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ हमें लर्निंग होती है और हम उसको रिपीट नहीं करते, उस लर्निंग को मतलब जो अपनी प्रोग्रेस के अंदर यूज करते हैं कि ये लर्निंग है और ये मैंने दोबारा नहीं करना। और दूसरी सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइट टाइप ऑफ मिस्टेक मेरे अकॉर्डिंगली, इधर भी आप देख रहे होंगे क्लॉकवाइज जो हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें ये कि ओन योर मिस्टेक। मैं इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट टाइप ऑफ मिस्टेक का जो एलिमेंट है, या समझे कि राइट टाइप ऑफ मिस्टेक्स की अगर डेफिनेशन हम निकालें, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो ये है कि जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, अब क्योंकि वही इंसान जो है वो गलती को रिपीट नहीं करेगा, वही इंसान गलती से सीखेगा, वही इंसान अपनी मतलब प्रोग्रेस करेगा। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मैंने ये गलती कर दी है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर हम यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, हम ठीक है हम उस टाइम पे हम इस चीज को हम जजमेंटल नहीं हो सकते उस पॉइंट पे। अगर मैं मतलब एक आउटसाइडर हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं अगर वो जजमेंटल हो जाऊं तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हम टीचर से हेजिटेट करते हैं, हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। लेकिन यस, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हमें पता जरूर होता है कि ये हमारी ही गलती है। आप अक्सर अपने साथ पैरेलल स्टूडेंट्स अपने साथ देखते होंगे, डिफरेंट कल्चर के देखते होंगे, डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट कॉलेज बैकग्राउंड से देखते होंगे। और मैंने इवन के देखा है कि यहाँ जिन स्टूडेंट्स को या जिन अपने कोलीग्स को, इवन के क्लास फेलोज को, सबसे इंपॉर्टेंट कोलीग्स को भी नहीं, क्लास फेलोज को सबसे इंपॉर्टेंट, हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं ना कि लाइक इसने उस स्कूल से पढ़ा है या उस कोई स्मॉल टाउन से है या कोई स्पेसिफिक एरिया से है या कॉलेज से है, ये कुछ नहीं करेगा। सबसे ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी उनके अंदर इसलिए होती है कि वो लोग, उन लोगों को अपनी जो है वो पता होता है कि हमें हमारी मिस्टेक क्या है या ये चीज हमें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो मिस्टेक नहीं होती जो हम ये कहते हैं ना कि ये चीज मुझे नहीं आती। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई मेरी जो लिमिटेशंस हैं वो मेरी मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन यस आई नो कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे ये भी पता है कि इन लिमिटेशंस के साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बजाय कि उनके साथ स्टक होकर मैं कहूँ कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली इन एवरी ह्यूमन बीइंग वो कैपेसिटी जो है, वो ताकत, वो जो है वो कहीं ज्यादा होती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले ओन योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, फिर देखें कि आपको क्या करना है। रीफ्रेम द एरर, अपने एरर को रीफ्रेम करें, उसको जाने, उसको एक एक जैसे हम एक चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं
और उसको देखते हैं कि अच्छा मैंने इस टाइम पे इतने बजे, अगर मैं सुबह 10 बजे निकल जाता या सुबह मैं 8 बजे उठ जाता और मैक्सिमम मैं 9:30 बजे निकल जाता, तो आधे घंटे के अंदर मैं यूनिवर्सिटी पहुंच सकता था। तो ये चीज है। फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, आपने एनालाइज कर लिया कि मैं इस टाइम तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाता, इसको आपने एनालाइज कर लिया। फिर पुट लेसन्स लर्न इनटू प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस में आप अपनी उन चीजों को ले आए कि अच्छा मैं इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, और फिर आप अपनी उसी दौरान अपनी एक्टिविटी को जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि अच्छा मैंने जो अपने अंदर ये चेंज लेकर आया है, रिव्यू योर प्रोग्रेस, कि आपको वो जल्दी जाने का क्या फायदा हुआ, कि उसके अंदर आपने सारा आपने एक्सेप्ट किया, आपने रीफ्रेम किया, आपने एनालाइज किया मिस्टेक्स को, आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, फिर आपने रिव्यू किया, आपने लाइक 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपने रिव्यू किया कि अच्छा इस सब चीज के अंदर, इस ये चेंज के अंदर मेरे मतलब इस चेंज के अंदर मेरी लाइफ में या मेरी एक्टिविटी में क्या प्रोग्रेस हुई है, मेरे उसके अंदर क्या चेंज आया है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इट इज ओनली ह्यूमन टू अर्न after all, which is why mistakes will be made and lessons will be learned. ये इंसान ही है जो गलतियां करते हैं। ऑब्वियसली हम एज ए मुस्लिम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास ही ये ताकत है गलतियां करने की। एंजल्स या फरिश्ते तो गलतियां नहीं करते, लेकिन which is why mistakes will be made and lessons will be learned. लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ये ज़हन दे दिया है कि वो उस चीज को समझे क्या गलत और क्या सही है, और उसी से फिर वो सीखे और वो प्रोग्रेस करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथन योर सेल्फ डिसिप्लिन मसल। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसमें एक्नॉलेज योर वीकनेस। अब जैसे मैंने आपसे प्रीवियसली एक एग्जांपल आपको दी थी कि जिसमें हम अक्सर अपने कुछ क्लास फेलोज को जो है वो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, या इसको इंग्लिश नहीं आती है, या इसको कोई मैथ्स में वीक है, या इसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, या इसका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे आईटी के जो कोर्सेज करते हैं और नॉन आईटी जो बैकग्राउंड्स के होते हैं, इनफैक्ट मैंने अपने खुद देखा है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स ने, मेरे क्लास फेलोज ने जो है वो आईटी सब्जेक्ट्स में टॉप किया। अब उन्होंने टॉप क्यों किया? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कोई भी आपकी वीकनेस है, कोई भी ऐसी चीज है, तो हम उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरी ये वीकनेस है, उस पर हमें एम्बेरस्ड होने की या उस पर डिनाई करने की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ भी मैं समझती हूँ कि आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जब आप उसको ओवरकम कर लेते हैं तो शायद वही एक चीज आपकी एक जो है सबसे ज्यादा एक पावर जो है आपकी जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो बन जाती है, आपकी ताकत बन जाती है, आपकी पावर बन जाती है। तो आप जब उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो है वही चीज आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी जिंदगी में साबित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथन होने के लिए अपनी एक्नॉलेज करें अपनी वीकनेसेस को। अब बैठ के सोचें। अक्सर हम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, हम अब क्लास फेलोज होते हैं, हम फ्रेंड्स होते हैं, हमें पता होता है कि ये इस चीज में अच्छा है, ये इस चीज में बेहतर है मेरे से, और मैं किसी और चीज में बेहतर हूँ। और अच्छा वो इस चीज में अच्छा कैसे है? हो सकता है कि वो आधे घंटे में मतलब मैथ्स करके कोई भी ऐसा वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हो, मुझे 1 घंटा लगता हो। तो असल में प्रॉब्लम ये आता है कि हम उस पर स्टक हो जाते हैं कि उसको आधा घंटा क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है। हम इसी चीज पे जो है वो स्टक रहते हैं, बजाय कि इसके कि अच्छा हम 1 घंटा देके समहाउ हम उतनी प्रैक्टिस करके हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं। उसके बाद डिफाइन योर गोल्स। अपने गोल्स को डिफाइन करें। आपके एकेडमिक करियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लाइफ के गोल्स भी हो सकते हैं कि आपको फर्दर क्या करना है, आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि समहाउ हमें कहीं ना कहीं पिक्चर जो है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो है वो क्लियर होती जाती है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा किस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। समटाइम्स जरूरी नहीं है कि हमारा सेम फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, लेकिन उसके लिए कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन करनी चाहिए मेरे ख्याल से कि मुझे इस इतने देर के बाद मुझे ये चाहिए, या इतने अरसे के बाद मुझे यहाँ पहुंचना है। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल। छोटे छोटे चंक्स में हमें चीजें हमें इतनी डिवाइड कर लेनी चाहिए। अब स्टार्ट विद स्मॉल का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमारी डेली रूटीन है।
अब डेली रूटीन को हम कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी चीज आपकी जिंदगी में होती है, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, आप उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप हमेशा जो है वो एक छोटी चीज से स्टार्ट करें कि मुझे अगर जॉब ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल जॉब ढूंढनी है, तो इतनी टाइम मुझे अब सर्फिंग करनी है, मुझे इतने टाइम इतनी वेबसाइट्स को विजिट करना है। अब उसमें समटाइम्स ये होता है कि आपका एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। समटाइम्स चीजें बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें अवेलेबल होती हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए वो एडवर्टाइज होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उस चीज पे हमें रहना चाहिए, हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। रिमूव टेम्पटेशंस, कि टेम्पटेशंस जो हैं वो हमारी बड़ी टेम्परेरी होती हैं। उसमें ये होता है कि अक्सर हम कहते हैं कि इसके पास ये है, जैसे हमने अपने पास्ट एक स्टोरी से भी हमने ये चीज देखी कि हम कहते हैं कि ये मतलब इसके पास ऐसा है। हम समटाइम्स ये नहीं सोचते कि इसने उसके लिए कितनी एफर्ट की। आप किसी भी अपने, कोई आपका आइडियल है या कोई आपको लगता है कि अच्छा इसने इतनी कम उम्र में इसने ये कर लिया, तो कभी भी आप उसको पर्सनल लेवल पे जानते हो या उससे पर्सनली बात आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता कि उसने कुछ डेडिकेट नहीं किया या उसने मेहनत नहीं की या उसने फुल डेडिकेशन के साथ कोई चीज पाने के लिए कोशिश, कोई ना कोई हर जगह पे डेफिनेटली उसको एफर्ट करता है, उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करता है। सेक्रीफाइसेस अब क्या होते हैं, आपकी एज में सेक्रीफाइस सबसे बड़ा ये है कि आपकी फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ा, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ये दुख होता है बीइंग ए स्टूडेंट। तो उसमें ये कि मतलब कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीजों को आप सेक्रीफाइस करते हैं, और सेक्रीफाइसेस में मैं समझती हूँ कि हमेशा नहीं होते। आप किसी चीज को किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो छोटी छोटी चीजें आप फॉरगो कर रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, वो एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद बड़ा आप कॉन्फिडेंटली जो है वो अपनी चीजों को एंजॉय भी करते हैं। रिमेंबर दैट यू आर इन चार्ज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद इंचार्ज होते हैं। आपको कंपनीज, आपको टीचर्स, आपको पेरेंट्स सब एक पाथ दिखा सकते हैं। आपको मैं ये बता सकती हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे तो राइट साइड पे ये आ जाएगा, ये जगह आ जाएगी, या यहाँ से आप ये रोड पे जाएंगे तो अब ये आ जाएगा। अब उस पे चलना है। हो सकता है मैं ये स्किप कर जाऊं कि ये रोड जो है, ये जो रास्ता है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए, सबके लिए, इनफैक्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम खुद अपनी लाइफ के जो हैं वो इंचार्ज हैं। हमें खुद स्टेप आउट, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। हमें खुद उस चीज को जो है वो मेहनत करनी होगी और जज करना होगा कि अच्छा अगर ये रास्ता मुश्किल है तो कितना मुश्किल है और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इसके अंदर मैं कैसे चल सकता हूँ। ऑलवेज प्लान अहेड। आपने एक पॉइंट पे किया, आप कोई बिजनेस, आप कोई स्टार्टअप करते हैं, उसको आपको पता है जैसे चीजें डेली बेसिस पे चीजें चेंज हो रही हैं, डेली बेसिस पे चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। आप इवन के आज से, मैं समझती हूँ आज से 5 साल पहले आप डिफरेंट किसी भी ब्रांड को निकाल के देख लें जो आपको बड़ा इजीली आपके जुबान पे है, आप उनकी स्ट्रैटेजीज को ही सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें। जो आप बड़ा, अब जैसे लड़कियां हैं क्लोथिंग ब्रांड्स को बड़ा फॉलो करती हैं, या लड़के हैं कोई गैजेट्स का कोई ब्रांड है उसको बड़ा फॉलो करते हैं, मैं समझती हूँ कि आप डेकेड भी नहीं, आप 5 साल पहले उस कंपनी को उठाकर देख लें कि वो कंपनी कितना फास्टली जो है वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं अपनी मार्केट को अपडेट करने के लिए और चीजों को प्लान आउट करने के लिए। इसी तरह अगर आप कोई चीज सोचते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं या कोई स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने चीज अचीव की, उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है इसको मार्केट में अपग्रेड करने के लिए। ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है कि आप छोटी छोटी चीजें, मैं समझती हूँ कि आपको जो एक चीज है, अगर आपको अपना ऑफिस बनाया है तो रिवॉर्ड्स के बड़े डिफरेंट एक एलिमेंट्स होते हैं, और ये एक चीज है कि आप जितना मेहनत करते हैं और अपने आप को जितना, जब आप रिवॉर्ड करते हैं और उतना ही आप जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि आप उसके अंदर कोई भी आप मिलकर कोई आपने चीज, अपना टारगेट अचीव किया है, या आपने खुद से कोई टारगेट एज इंडिविजुअल किसी जॉब के प्लेटफॉर्म से आपने अचीव किया है, तो आप कोई भी चीज उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी उसको किसी भी तरह उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट है। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है, आप अपनी लाइफ में पास्ट में जितने भी अपने लीडर्स हैं या जितने भी आपके आइडियल्स हैं उनको आप उठाकर देख लें कि
हर इंसान ने, हम अक्सर ये कहते हैं कि ये जो है वो इसको यहाँ से निकाल दिया गया था, स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से, इससे उधर से निकाल दिया गया था, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब उन्होंने कुछ अचीव किया है तो तब वो ट्रैक पे आ गए थे, तब वो डिसिप्लिन्ड हो गए थे, उसके बाद वो इंसान ने ये एक स्पेसिफिक अपना गोल जो है, अपना स्पेसिफिक टारगेट जो है, वो उसने उस पाथ पे या उस रास्ते पे चलकर वो एक स्पेसिफिक जो है वो पाथ जो है वो अपना अचीव किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, सीक देम आउट। अपॉर्चुनिटीज को हम शुरू से, मैं आपसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि इसके अंदर ओपन योर आईज, से यस टू इट, डू समथिंग न्यू, आस्क व्हाई, नेवर स्टॉप लर्निंग। अपॉर्चुनिटीज, अब हम कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, मैंने यूनिवर्सिटीज में देखा, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी को, इवन कि मैंने भी ये चीज फेस की कि पंजाब यूनिवर्सिटीज को कंपनीज रीच आउट नहीं करती हैं, नहीं उनको करती हैं, उस यूनिवर्सिटी को करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग इवन के एज ए I2C के चले प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें, तो हम अपने रिक्रूटमेंट जो हमारे जो होते हैं वो इवेंट्स होते हैं, तो हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो ओपन होते हैं फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। इस तरह नहीं होता, कोई स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर होती हैं, क्योंकि जैसे हम उसमें आपको HR के लिए भी आपको हायरिंग हो रही होती है, आपके IT डिपार्टमेंट्स के लिए भी होती है, उसके अलावा भी हो रही होती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखें कि आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आपको इनफैक्ट जो स्पेसिफिक जॉब चाहिए है या आपको कोई स्पेसिफिक आपका टारगेट है, तो आपकी असल में मार्केट कौन सी है, आपको कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए। मैं अक्सर इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था कि हम लोग, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, आप लोगों के भी आते होंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और HEC की तरफ से भी आते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी HEC की तरफ से एक एक्सचेंज प्रोग्राम था जापान का, जिसके अंदर हमें वो 1 वीक का वो जो कल्चर आपका होता है, डिफरेंस जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, और वो एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे यहाँ 5 to 6 स्टूडेंट्स ने जो है वो वहाँ जाना था, ऑल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ना। पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइक 72 डिपार्टमेंट्स हैं इस टाइम, तो उन सब में से जो है वो 5 से 6 लोगों ने जाना था। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स थे उनके पास उस टाइम पे पासपोर्ट्स नहीं थे, पासपोर्ट्स नहीं बनाया हुआ था। अब उस टाइम जिनके पास पासपोर्ट्स थे, अब अक्सर मेरे साथ इनफैक्ट मेरी अपनी क्लास फेलो मेरी फ्रेंड थी, उसके पास पासपोर्ट था और वो उसने अप्लाई किया और वो चले भी गई उस पे। अब हम लोग बड़ा उस पे एक्सक्यूजेस दे रहे स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स हम शायद उस टाइम पे हमारे ये इस तरह के ही थॉट्स होते हैं कि हमें इनको टाइम ज्यादा देना चाहिए था, लाइक 15 डेज का मार्जिन देते, हम कुछ बनवा लेते या इस तरह से कर लेते। लेकिन अब आकर ये चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपनी लाइफ में ये चीज लर्न की है कि आप अपनी एंड पे फुली प्रिपेयर्ड रहें। अगर मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बता रही हूँ, तो उसको पासपोर्ट उसने इस वजह से नहीं था कि वो बहुत रेगुलरली इंटरनेशनली ट्रेवल कर रही थी, उसने कभी भी ट्रेवल नहीं किया था, लेकिन अपने एंड पे जैसे कोई एक अपॉर्चुनिटी आई और उसने फौरन उसको अवेल कर लिया। तो हमारे एंड पे ये है कि हमें अपने एंड पे क्या क्या चीजें करनी है, हमें देखना है कि हमारे इर्द गिर्द किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारी मार्केट कौन सी है, उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीजें चल रही हैं, हमें उस चीज को किस तरह से अवेल करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जिसके अंदर हम मोस्टली बड़ा एक कॉमन जो हमारा फैक्टर है, वो ये है कि हम बड़ी जल्दी जो है वो हालात पे, लोगों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम उस पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और उसमें फिर हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने एक सेंटेंस ये इसमें मेंशन किया है कि इफ यू डोंट लाइक अ थिंग इज चेंज इट, इफ यू कांट चेंज इट चेंज द वे यू थिंक अबाउट इट, डोंट कंप्लेन। कि आप किसी भी चीज को अपने, हम क्योंकि थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा हम इस चीज पे हेजिटेट करते हैं और बहुत ज्यादा डरते भी हैं कि ये चीज कहीं मेरे पे ना आ जाए। इनफैक्ट समटाइम्स ये होता है कि अक्सर हम टीचर से या अपने बॉस से तो हम डर रहे होते हैं, हम अपने आप से भी डर रहे होते हैं, हम अपने आप से भी डर रहे होते हैं, अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं करवा रहे होते कहीं ना कहीं कि ये कहीं मेरी थोड़ी सी ये कुताही है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो बहुत सारी एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, उनको किसी और तरह ऐसी डिजीजेस हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है जिनसे शायद प्रॉपर बैठा भी नहीं जाता।
और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पढ़कर कहाँ कहाँ जाते हुए, इनफैक्ट मैंने क्या, आप लोगों ने भी बहुत सारे एग्जांपल्स, मोटिवेशनल वीडियोस जिसके अंदर लीडर्स, मैं समझती हूँ कि वो आज के दौर के वो लीडर्स हैं कि जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को कोई चीज नहीं समझा, या अपनी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, किसी तरह की कोई डिजीज को, या कोई और अपनी हर्डल नहीं समझा और उसको वो ओवरकम करते हुए आगे चले गए। ऐसी हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स होती हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने ये भी लोगों को कहते हुए सुना, इनफैक्ट मैंने खुद कई दफा लेक्चर्स देती थी तो वो कहते बस आपने कर लिया ना तो बस कर लिया, हम नहीं ये कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी का हिस्सा है, मैं समझती हूँ वो क्या है, ब्रेन। और आपको नहीं पता, हमें स्टिल, मैं समझती हूँ कि काम करने के बाद भी मैं स्टिल समझती हूँ कि शायद हमें ये ब्रेन की जो ताकत है, ये जो ब्रेन की पावर है, ये हमें समझ आ जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं जो इसी के थ्रू जो है वो कमाल कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बजाय कि किसी पे ब्लेम करें या किसी चीज के लिए कंप्लेन करें, हम खुद देखें कि हमने ये, अगर ये रास्ता नहीं है, या फॉर एग्जांपल कोई इंसान के अंदर कोई हर्डल बनता है या इस तरह से बनता है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका अल्टरनेटिव क्या है। और आजकल के दौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जिसपे हमें काम हर बंदे को करने का बहुत जरूरी है, शायद मैं समझती हूँ कि इवन के जो हाउस वाइफ है उससे लेके जो वर्किंग वुमेन है, या जो आदमी काम, जो मजदूर से लेके कंपनी हेड तक, हर बंदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हाउ आई एम क्रिएटिंग और अलाउइंग दिस टू हैपन। ये होने कैसे दे रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो ये कि मैं क्रिएटिव कितना हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं किसी और अपने पैरेलल, मेरे ही जैसे इंसान, मेरी ही जितनी एजुकेशन के से मेरे अंदर डिफरेंट क्या है। तो आप ये देख लें, इवन कि आपका जो हॉकर आता है, जो ये चीजें बेचने के लिए आता है, उनकी भी जो डिफरेंट आवाजें लगती हैं, तो वो उनके अंदर भी एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है। वो कहीं ना कहीं आप देखना, किसी ना किसी चीज की कोई एक जो सदा लगाता है वो उसको याद रह जाती है। अभी बल्कि कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड मुझे एक बता रहे कि मैं बहुत 7-8 ईयर्स का था, तो अभी स्टिल मुझे याद है कि हम कहीं जाते थे कि हॉकर एक आवाज लगाता था। तो अब वो क्या है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। ये उसकी क्रिएटिविटी है कि हमारे लिए एक लोअर पॉइंट से लेके ऊपर तक, हमारे हर बंदे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट में क्रिएटिव क्या कर रहे हैं। वाई मी, वाई ज़हरा, कोई और क्यों नहीं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल, वो हम चाहे फिर कुछ भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, हम कंपनी को, अपने बिजनेस को अगर एक दफा साइड पे भी रख के सोचें, तो फिर भी एज ए इंडिविजुअल ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई मी, मुझे ही अगर I2C है या कोई और कंपनी है तो आपको ही क्यों रखेगी। उसके अंदर डेफिनेटली कोई एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और उसमें हम किन किन चीजों पे हमें काम करना चाहिए कि हम इस पे अपनी ये जो ब्लेमिंग गेम है इस पे ना काम करें, बजाय कि अपने उस पे काम करें कि हमने क्या गलत किया, या क्या अगर या चलें किसी की वजह से भी गलत हो गया तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ आई एम क्रिएटिंग और अलाउइंग दिस टू हैपन, what I am doing that is working that I need to do more of, what I am doing that is not working that I need to do less। कि मुझे क्या, किस चीजों पे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ और मुझे कम करना चाहिए, और जिन चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ उन पॉइंट्स पे मुझे ज्यादा काम करना चाहिए। एम आई वर्किंग टू मच, या मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ कि मुझे उसके अंदर बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे कनेक्टेड रहना चाहिए, मैंने इग्नोर कर दी है। एम आई टॉकिंग टू मच एंड नॉट लिसनिंग इनफ, कि मैं सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, हम अपने टीम मेंबर्स से या किसी से ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, लेकिन मैं सुन नहीं रहा कि वो भी मुझे कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं या वो भी कुछ मुझे बताना चाह रहे हैं कि ये जो तुम तो एक स्पेसिफिक चलें टर्मिनोलॉजी की तुम बात कर रहे हो, तो वो टर्मिनोलॉजी जो है अब वो इसको ऐसे नहीं, इसको ये नहीं बोलते, अब उसकी जगह ये एक चीज आ गई है। एम आई नॉट आस्किंग enough questions, या मैं अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा या किसी और से नहीं कर रहा कि मुझे क्लैरिटी चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए, एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, या नॉलेज चाहिए मुझे। व्हाट एक्शंस आर नीडेड है, कि मुझे अब अपना ट्रैक क्या बनाना है, अपने क्या क्या एक प्रॉम्प्ट जो अपने एक्शन है वो क्या, कौन से एक्शंस हैं मुझे लेने हैं।
अब सब कोई भी चीज दुनिया में अचीव करने के लिए आप अपने, मैं समझती हूँ कि अगर आप कायदे आजम को ही अगर उठाकर पढ़ लें, उनको ही पढ़ लें, मेरे ख्याल से यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वो मतलब अगर हमने पढ़ना ही है किसी की जिंदगी को बहुत डीपली, हमें ठीक है पाक स्टडीज में हम ये चीजें तो जरूर पढ़ती हैं कि इतने ईयर, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, लेकिन अगर हम एज ए इंडिविजुअल कायदे आज़म को, अल्लामा इकबाल को पढ़ें, तो सबसे आप किसी भी लीडर को, इनके अलावा भी आप किसी भी लीडर को आप उठा कर देख लें, आज आप एप्पल को देख लें कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आ गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो ऑल्दो कि इवन हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सपीरियंस भी और जो भी लोग हैं एज इंडिविजुअल इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट। अब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे आपको मशवरे आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसके लिए आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं कि जब आपको अपना पाथ क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि ये आपको करना है और हर हाल में करना है। इनफैक्ट मैं जब खुद स्टूडेंट थी, इवन कि जब मैंने शायद मैट्रिक किया था, मैंने मैट्रिक जब किया था तो इवन तब भी मैं बहुत सारी अपने मतलब एज फेलोज के साथ मिलती थी। तो मैंने क्योंकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी तो हम मतलब और बहुत सारे मेरे एज फेलोज जो हैं वो डिसाइड कर रहे थे हमें प्री मेडिकल करना है। तो उसमें बहुत सारी लड़कियां, मेजॉरिटी लड़कियां आपको पता है जिनको मतलब मेडिकल का लड़कियों को शौक होता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है तो मैंने डॉक्टर बनना है। और ठीक है, ऑब्वियसली इवन देन हमारे यहाँ मतलब हमारे ये बहुत सारे लोग इस चीज को मतलब नहीं बन पाते डॉक्टर, एट दी एंड वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि उस जर्नी के अंदर आप कुछ सीखते नहीं है, या उस जर्नी आप बहुत सारी ऐसी एकेडमीज देखेंगे, इवन के लाहौर में भी एक एकेडमी है सीएसएस की जो प्रिपरेशन करवाती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एकेडमी जिन्होंने सीएसएस खुद नहीं पास किया, लेकिन उसके बाद उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग वो लर्निंग्स थी, इतनी उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने क्या हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो सीएसपी ऑफिसर्स जो है वो वहां से निकाले हैं और उन्होंने पास आउट किया है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि और मैं समझती हूँ कि जो एक बंदा जिसने इतने सारे लोगों की लाइफ के अंदर वो चेंज लेकर आया, तो मैं समझती हूँ शायद बहुत सारी सीएसपी ऑफिसर्स के कंपैरेटिवली भी वो बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है, मैं समझती हूँ कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल इस चीज को करें, और मेरा नहीं ख्याल, अगर चले आप इसको हम अर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वो कुछ कम अर्न कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, या उन्होंने कम इज्जत कमाई होगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उस जर्नी के दौरान इतना कुछ लर्न करते हैं, अगर आप उस पॉइंट पे नहीं भी पहुंच सकते तो उस टाइम पे आप, जब आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते, या कोई, ये तो हम बीइंग स्टूडेंट बात कर रहे हैं ना, कि अगर हम कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में या इसमें दाखिला नहीं ले सकते तो हमारी लर्निंग्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं, या कोई स्पेसिफिक और दूसरी ऑन द अदर हैंड हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं, तो हमारा फिर ये एक डिसीजन होना चाहिए कि हम सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ के बैठें। अब हम देखें कि अब जो हमें करंट ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें, अपनी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किन किन चीजों पे काम करके मैं क्या क्या चीजों को अवेल कर सकता हूँ। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है, मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू रिमेन कंसिस्टेंट। कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए कि अच्छा मैंने एक पॉइंट किया, एक मैंने बात की है, एक मैंने डिसीजन लिया है, तो यस मुझे पता है कि मैंने आज, ये नहीं कि आज रात मैंने ये चीज सोची है, सुबह नहीं मुझे रात को ख्वाब आया था कि तो मुझे करना ही नहीं है, अब मैं ये करूंगी। रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कि आप रिवाइज करें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, वही जो हम बात करें कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या वो अपग्रेडेड हैं, या वही मार्केट में उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, या वो अब उसकी जगह कोई नई चीज आ गई है। हैव अ प्लान, नो योर ऑब्जेक्टिव्स, अपना प्लान बनाएं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें, तभी आप उसके ऊपर फॉलो करेंगे। और जब आपका इतना करेक्ट जो है वो आपका इतना विजन जो है वो इतना क्लियर होगा, तभी आप कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं। जब हम क्योंकि चीजें समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चीजें स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें आगे वेग नजर आना शुरू हो जाता है। अगर मुझे एक चीज चाहिए तो मुझे उस पर मेरे ख्याल से फुली मुझे काम करना चाहिए, कि उसके दरमियान बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी, बहुत सारे लोग आपको मशवरे भी देंगे, लेकिन अगर आपने अपना वो होमवर्क पूरा किया हुआ है तो कोई आपको उसको अचीव करने से आपको रोक नहीं सकता।
रिमेंबर दैट फीलिंग एंड थॉट्स आर टेम्परेरी एंड सब्जेक्टिव, कि हम सिर्फ बैठे हुए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मैं 3:30 बजे अगर ये मीटिंग ज्वाइन कर लेती तो फिर भी ये हो जाता, या मैं 4 बजे ये ज्वाइन कर लेती तो फिर भी ये हो जाता, या 4 बजे के बाद करती, क्योंकि सब चीजें जो हैं वो टेम्परेरी है। हम एट द एंड ऑन रिकॉर्ड क्या चीज रह जाती है? ऑन रिकॉर्ड वो चीज रह जाती है जो आपने प्रैक्टिकली की होती है, जो आपका काम दिख रहा होता है, या आपके रिजल्ट्स हैं, आपका कोई परफॉर्मेंस है, आपके किसी जॉब पे परफॉर्मेंसेस हैं। एट द एंड आपका वो रह जाती है, वो आपके पास एक ऑन रिकॉर्ड चीज रह जाती है कि अच्छा ये इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो इतने % ये एवेल्युएट हुई, ये इंसान है अगर इसने इतने 80% स्कोर किया अपने एकेडमिक करियर में, तो वो चीजें जो है असल में रियलिटी में वो चीजें रह जाती हैं। डू वन थिंग एट टाइम, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अक्सर हम ये चीज सुनते हैं अपने टीचर्स से भी, और वो अक्सर हम मोबाइल पे लगे हुए होते हैं या क्लास ले रहे होते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप मोबाइल भी यूज करें, आप कोई दूसरी आपकी एक्टिविटी है जो आपको लगता है वो भी आप करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द इस टाइम पे क्या हो रहा है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इस टाइम पे एट दिस मोमेंट क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं जो बात कर रही हूँ या मैं जो डिलीवर कर रही हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। एट अ टाइम हमें एक चीज पे काम करना चाहिए। इस चीज के आपके हेल्थ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। आपको तो लग रहा होता है कि स्टूडेंट लाइफ में ये चीज आपको लग रही होती है कि आप कुछ टीचर आपका लेक्चर दे रही हैं या आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्रेन भी है वो बहुत एक हसल के अंदर होता है, जो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है उसकी डिफरेंट चीजें। आप अगर ग्रेजुअली अपनी लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आगे जाके अपनी जिंदगी को, कि आप जितना चीजों को जो है वो कहते हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, एट वन टाइम पे एक काम करेंगे, चाहे वो 10 मिनट के लिए किया, आपने 10 मिनट किसी को रिप्लाई करना है या कॉल करके आंसर करना है, हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट्स की वो कॉल होगी, या कोई आपको टीचर का कोई जैसे आपको पता है आजकल हम लोग ज्यादा ऑनलाइन कनेक्टेड हैं अपने टीचर्स के साथ, उतना ही आपका जो है आपकी ऑन द अदर साइड बहुत सारी चीजों में आपका विजन भी बहुत क्लियर होगा, कि आपको पता चल जाएगा। और आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कोई बात कर रहा होता है, कोई भी लेक्चरर बात कर रहा होता है, कोई टीचर बात कर रहा होता है, हम कोई और इवेंट अटेंड करते हैं, कोई लीडर बात कर रहा होता है, तो हम लोग बड़ा उस चीज को बड़ा हम फॉर एग्जांपल आपको टीचर ये कहती हैं ये वीडियो देखना, हम ऐसे आगे करके उसको फॉरवर्ड करके देखते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ के साथ या हमारे नॉलेज के लिए कोई एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था जिसको हमने मिस कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट की होती हैं, हमने बहुत सारी चीजें, अच्छा टीचर को बताना है, हाँ इसने ये वीडियो देखी थी मैंने, इसके अंदर ये रंग के कपड़े पहने हुए थे, ये हुआ था, मोटी मोटी चीजें जो है वो हमने याद कर ली है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जो पॉइंट्स आपने निकाल लिए उसके अंदर से। अगर आप उसको डिटेल में देखते या उसको डिटेल में सुनते, तो आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन सी लर्निंग है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इंसानों की प्रॉब्लम्स, हर्डल्स डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ऑल्दो कि हम कहते हैं कि वो कहते हैं ना शक्लें अलग होती हैं, लेकिन शक्लें अलग अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स सेम होते हैं या प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। लेकिन उसमें ये है कि कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का मसला करता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मसला मेरे साथ था, यही तो मुझे हुआ। फिर हमें बड़ा उस टाइम पे मेरे ख्याल से हमें बड़ा वो होना चाहिए, हमें बड़ा फोकस्ड रहना चाहिए कि अच्छा जी ये इसने इस चीज से ये लर्निंग दी, तो मुझे मैं भी इस चीज पे ट्राई करके देखता हूँ कि हो सकता है मेरे लिए भी एक ही पॉजिटिव साइन। और डेफिनेटली होता भी है, वो सिर्फ ट्राई नहीं होती, वो होता भी है। जैसे हम जो बड़े बहन भाई होते हैं वो गलतियां करते हैं, वो अगर अपने छोटे बहन भाइयों को बताते हैं, इनफैक्ट मैं अगर अपनी बहनों को बताती हूँ तो मैं उनसे सेम यही बात बोलती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ या तो आप इससे सीख लें या फिर आप इसको रिपीट कर लें, और खुद से सीख लें तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई इस तरह से है, तो आप उससे सीखें, आप उसको अपनी लाइफ की जर्नी है उसके अंदर प्रैक्टिकली उसको लेकर आएं, और डेफिनेटली आपको उसका बड़ा एक पॉजिटिव साइन भी नजर आएगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि हम जितने अपनी जिंदगी के टारगेट्स है ना,
चाहे आपके प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैक्सिमम आप उसको सिंप्लीफाई करें। जितना आप उसको स्कैटर्ड रखेंगे उतने वो वेग होते जाएंगे, उतना आपका, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं भी था तो वो आपके एक ओवरकम करके आपके दिमाग पे ओवरकम कर जाएगा, और वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा कि आपके लिए जो मेन फोकस चीज थी उसको उसने जो है वो उसके ऊपर वो छा जाती है एक चीज, और आप अपने मेन फोकस से भी हट जाते हैं। तो अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करें, अपनी चीजों पे फोकस्ड रहें। अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज को मैं समझती हूँ जिंदगी गुजारने के लिए ही आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं, मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं इस शक्ल, इस रंग, इस बाजू, इस टांग, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जो जो चीजें जिन चीजों के साथ मैं ब्लेस्ड हूँ। और डेफिनेटली हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट, मैंने इनफैक्ट अब आपने ये भी देखा होगा कि आप स्टूडेंट्स में मैंने बहुत बहुत ये करेज देखी है कि अगर वो एक डिग्री ले रहे हैं तो शाम में बहुत सारी वो कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है या इतनी आपके अंदर पावर है तो आप कर रहे हैं ना, डेफिनेटली। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है, कहीं ना कहीं कोई चीज अगर मिस भी हो जाती है हमसे, कहीं ना कहीं हमसे मिस क्या, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट हम नहीं भी अचीव कर सकते, तो फिर भी मैं समझती हूँ कि हमारी जिंदगी वहां पे एंड नहीं होती है। हम बहुत सारी चीजों के साथ फेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारी, हम एक चीज को समटाइम्स होता है ना कि एक लैडर पे चढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा अभी तो इसकी ऊंचाई और बहुत ऊंची है। तो यही हमारी वो जो लाइफ का जो है वो मैं समझती हूँ कि खूबसूरती है कि आपके अंदर जो प्रोग्रेस, आपके अंदर जो एक आपको पॉलिश करती है एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको चीजें पॉलिश करती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लें। जहां आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है वहां आप पॉलिश होना खत्म हो जाते हैं। जहां जितनी देर तक आप स्ट्रगल अपनी बरकरार रखते हैं, उतनी देर तक आपने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स देखी होंगी। मैकडॉनल्ड की इसके एक दो और एग्जांपल्स भी हैं जिनमें लोगों ने आफ्टर रिटायरमेंट वो चीजें लॉन्च की हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसे, फिर वो कहते हैं ना कि ऐसे जैसे चीज एक पड़ी रहती है, पड़ी हुई चीज को ही जंग लगता है। आप रेगुलर किसी चीज को यूज करते रहें या उसको प्रैक्टिस में लेकर आते रहें, वो चीज ऑब्सलीट नहीं होती, वो खराब नहीं होती। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसे ही है कि कोई एज, कोई स्पेसिफिक जेंडर या कोई स्पेसिफिक फील्ड या कोई स्पेसिफिक शक्ल कुछ भी मैटर नहीं करता। एट द एंड अगर कुछ मैटर करता है तो वो हमारी एबिलिटीज हैं, वो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो मैटर करती हैं। और हमें उस चीज पे, मेरे ख्याल से सब आप कुछ अचीव कर लेते हैं या आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और मैं इस चीज को बड़ा अपने आप को इस चीज पे मैं प्राउड इस तरह से फील करती हूँ कि मैंने जिस तरह के प्रॉब्लम्स, जिस तरह की चीजों को फेस किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू मेरा जिंदगी का पर्पस जो है वो कंप्लीट हो रहा है कि मैं यूथ को बता सकूं और कह सकूं कि यस यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारी प्रेजेंटेशन मैंने एंड कर दी है, और कायदे आज़म की कोट के साथ मैं एंड करूंगी। विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी, देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। ऐसा कुछ नहीं है जो आप फेथ और डिसिप्लिन के साथ और डिवोशन के बगैर, या अगर आपने ये सब कुछ किया है तो आप कुछ अचीव ना कर सकें। डेफिनेटली एट द एंड आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो पॉइंट आपको चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बताइए जो आपके क्वेश्चंस हैं, हम उस पर बात करते हैं। जी सायरा, आप हमारे साथ हैं? Ji, Zara, thank you for such a detailed and comprehensive presentation and briefing. And I believe it was not only a virtual motivation session, rather it was more of a induction session as well, whereby you also, oriented the students about the expectations of the I2C, which they have from the graduates coming out of universities ready to join the company, which itself is very encouraging. And I hope that, students in future will definitely be looking towards I2C as their dream employer.
as a conclusion, I would say that whatever you discuss, that is definitely, you know, a recipe book, you know, for the younger generation, specifically in today's scenario of COVID, that how they can overcome the fear of failure and how they can, you know, get into the right direction, and they can pursue the career of their choices. Thank you. Because Thank you, the current Saira. situation, you know, is we know that it's a digital and it's a gig economy, and previously we Exactly. used to see that employers, you know, used to consider, you know, and they used to evaluate the students on the basis of IQ test. With the passage of time, you know, EQ, emotional quotient also got added into it, and Exactly. now because of the situation of COVID, you know, the technology quotient has also been added. So a good marketable graduate, you know, will be the one who will be carrying all the three quotients, the quotient tripod of IQ, EQ, and TQ. Exactly. So we have a couple of questions which we have received in the chat. I will also request remaining participants, if they have any questions, they can drop in the chat box, the personal chat box, I and we couldn't will, see the chat box. but we can see we have received a few questions. I will read it on their Okay. behalf. So there is a student called Ribaha Javed, and she has asked a question that what will be the plus point to gain a job in such a digital economy where the recruitment processes and criteria for selection have evolved so much? आई थिंक कि हमें जब हम किसी भी स्पेसिफिक मतलब वो ये चाह रही हैं कि मुझे इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े. वो ये कह रही है कि जो अब डिजिटल इकोनॉमी एक शेप अप हो गई है, हाँ. उसमें जो कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो हैं कंपनीज के और जो उनका क्राइटेरिया वो जी. सिलेक्शन है, क्या जी. वो जी. भी इवॉल्व हुआ है? इज देयर एनी अदर थिंग व्हिच हैज बीन रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स नाउअडेज जो कि स्टूडेंट्स में होनी चाहिए? नहीं, हमारा ऐसा है कि देखिए बिल्कुल इवॉल्व तो डेफिनेटली वो विद टाइम होता रहता है, लेकिन हमारे जो बड़े सिस्टमैटिकली जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट से हिडन हो या उनको पता ना हो. डेफिनेटली जब उसके लिए वो अप्लाई करते हैं उस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है कि आपकी एकेडमिक करियर से या आपके सब्जेक्ट से कुछ हटकर जिस कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने वो स्पेसिफिक जो हमारी वैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपके नॉलेज से हटकर कोई चीज हो. डेफिनेटली कंपनीज वही जैसे मैं इस पे ड्यूरिंग अपने प्रेजेंटेशन भी बात करी थी कि कंपनीज जो है वो डेफिनेटली वो अपग्रेडेड रहती हैं. लाइकवाइज ऐसे ही फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू जो मतलब एक्सपीरियंस लोग भी वो अपग्रेडेड होते हैं, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो उनके कंपैरेटिवली ज्यादा अपग्रेडेड होते हैं क्योंकि आपकी बुक्स, आपकी चीजें, आपकी टर्मिनोलॉजीज उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपग्रेडेड रहती हैं. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अगर वो अप्लाई करते हैं या उस पर करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनके नॉलेज से कुछ हटकर हो. Okay, there is another question from Aiza Talat, and she said that I mistakenly asked the question at that time during the session, so she has put the question again. And she is asking that does GPA matter a lot in the selection process during the recruitment process, or companies hire for the attitude? देखें, ये बड़े एक मैं इसको कहती हूँ ये बड़ा एक इनोसेंट क्वेश्चन है. उसमें ये होता है कि आप ये देखो कि जीपीए एसोसिएटेड किसके साथ है. आप क्लियरली इसको आप आंसर करें कि जीपीए जो है. सायरा चलें आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि जीपीए जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है. आपके एकेडमिक करियर के साथ, आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ. ठीक है ना. आपके कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे, लाइक देखें अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज सीखते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं किसी चीज की, तो आपको वो आती होती है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं. ऐसा ही है. ठीक है. तो उसमें ये है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको उसमें ये है कि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होता. जब हम एक ग्रेजुएशन की या ग्रेजुएट की बात करते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीख कर आता है.
तो जीपीए मैटर, आप जब हम इतने लॉन्ग प्रोसेसेस से गुजारते हैं, अपने अपने उसके अंदर से एवेल्युएशन प्रोसेसेस में से गुजरते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर वो चीज क्लियर होती जाती है कि जीपीए जो है, जीपीए समहाउ डेफिनेटली वो मैटर करता है इन अ सेंस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये चीजें आती हैं और आपका जीपीए मेरे ख्याल से अच्छा होता है। अच्छा इन अ सेंस कि लाइक दीदी मैं आपसे कह रही कि आपका 3.8 या 3.9 या 4 तक आपका जीपीए होता है, तो तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स, आपको, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं जब एवेल्युएशन प्रोसेस कर रही होती हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, और आप तभी उन प्रोसेसेस को पास भी तभी करते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको उस स्पेसिफिक फील्ड पे फुली कमांड होती है। तो उसमें डेफिनेटली वो चीजें आप खुद ही देखेंगे जब खुद ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। हम लोग भी बिल्कुल इसी तरह सोचते थे कि शायद जीपीए क्योंकि एसोसिएटेड आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ है। अगर आपको कोई चीज एक अच्छी आती है, मुझे अगर शायरी अच्छी आती है या मुझे कोई एक स्पेसिफिक और चीज ड्राइंग अच्छी आती है, तो अगर मुझे किसी एक ड्राइंग वो इंस्टीट्यूट में लगना है या मुझे ड्राइंग आती होगी, तो फिर उसके अंदर मेरे मार्क्स अच्छे होंगे, और उसमें मार्क्स अच्छे होते हैं, और इस वजह से नहीं मैं कह सकती कि मार्क्स अच्छे हैं तो मुझे वो जॉब मिलेगी। लेकिन अगर मेरी ड्राइंग अच्छी है तो डेफिनेटली वो मुझे रख लेंगे और उसको एज इंस्ट्रक्टर रख लेंगे और उसको कहेंगे कि अच्छा जी आप सिखाएं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये चीजें इंटरलिंक तो हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा जाकर हम ये नहीं, उस चीज को नहीं एवेलुएट करते कि नहीं इसका 4 जीपीए है तो इसी को हम रखेंगे, या इसका 3.8 है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Absolutely right. It's a combination of all the factors. And you're absolutely right. When we were in the student life, we also used to think same way. And GPA is not only the indication of your command on your subject, rather it also shows that how much hardworking and consistent you are in your outlook. Exactly. Okay, we have one more question from, I hope I'm pronouncing the name correctly. It's Muntaha Parkha. I don't know it's he or she, but the question is that can students accept IT and marketing background can join I2C or not? Non-IT background, na, like. Yeah, they are asking about that if the student is not from IT and marketing, still is there a opportunity Yes, for yes, the students in I2C or not? Still we have like around 100 opportunities for students. वो हमारे career portal पे भी देख सकते हैं, वो And there is another जी there is जी बताइए another सायरा। innocent question. The student has not mentioned the name. The question is that is there any opportunity for civil engineers in your organization? Civil engineers नहीं, civil Yeah. engineers के लिए नहीं। Civil engineers नहीं है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे प्रीवियसली, आपने मुझसे कुछ पूछा था, हाँ नॉन आईटी के लिए। उनके लिए ये कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मतलब आई डिड एमबीए, मैं आईटी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, आई एम वर्किंग इन एचआर। तो डेफिनेटली हमें देखें हर जगह पे आपने देखा होगा डिफरेंट, अब तो डॉक्टर्स भी जो हैं, डॉक्टर्स भी डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस में इवन के उनके डॉक्टर्स होते हैं। तो असल में बात सारी वो यही है कि आपको कनेक्टेड रहने की बात है, कि मैं ये समझती हूँ कि बल्कि मैं एक स्टूडेंट्स को ये एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है वो भी आईटी कंपनीज को उनको इग्नोर इस सेंस में नहीं करें कि इधर मेरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी शायद। आप सिर्फ ये देखिए कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, और उसको उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक जो है स्पेशलिटी चाहिए ना। तो इस चीज को आप जहन में रखते हुए आप कनेक्टेड रहिए, आप वेल अवेयर रहें, आप देखें कि आपकी अगर कोई मतलब हायरिंग हो रही है या कोई वैकेंसी है तो वो कौन सी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की है। जी नेक्स्ट बताइएगा सायरा। Okay. There is another question from Farah, and she's asking that in today's age, how much the social media presence of the candidate matters. सोशल मीडिया, Yeah. देखिए अगर हम आईटी बैकग्राउंड की बात करें तो इवन कि आईटी के लिए या किसी और के लिए स्पेसिफिक जॉब की अगर हम बात करें फॉर कंपनीज, मेरा नहीं ख्याल कि कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा आपके सोशल मीडिया को उसको कंसिडर करते हुए फिर आपको देती हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में, अच्छा मुझे बताएं स्टूडेंट लाइफ में हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं।
स्टूडेंट लाइफ में हम पिक्चर्स लगाते हैं सिर्फ, या हम ये बताते हैं कि हम इस रेस्टोरेंट में हैं, इसमें नहीं है। अच्छा, ऑन द अदर साइड अगर आप किसी स्पेसिफिकली किसी की बात करें, अगर आप चले मेरी बात कर लें, मैं आपको अपने से ही एग्जांपल एक चीज देना चाहूंगी कि जैसे आई वाज वर्किंग एज ए इंडिविजुअल, मैं थोड़ा टाइम के लिए काम किया, एक और कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन उसमें फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं एज ए इंडिविजुअल काम करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई मुझे I2C ने कंसिडर किया तो डेफिनेटली वो देखना चाहेंगे कि एज इंडिविजुअल जब मैं काम करी थी तो मैं कहाँ कहाँ काम करी थी, किस तरह का काम करी थी, क्योंकि वो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज बिल्कुल भी मैटर करती है कि आपका सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो आपका अकाउंट है आप किस तरह के हैं या क्या है। हमारे प्रोसेसेस इस तरह के होते हैं कि हाँ उसके अंदर हमारे बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, वो चीजें चेक्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिकेशन उसके अंदर रखते हों कि इसने इस तरह की तस्वीर लगाई थी, इसने ये बात कही थी या इस तरह की चीज कही थी तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैटर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन हाँ अगर आप पास्ट में जैसे कोई काम कर रहे हैं, एज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको अपग्रेड मतलब रेगुलर आप एक्टिव होते हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू और आप उसको अपग्रेड करते हैं कि करंटली मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं उसको कंसिडर इस तरह से करते हैं कि हमें क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है कि ये इसने यहाँ पे भी लेक्चर दिया हुआ है, इसने ये भी किया हुआ है, इसने ये भी किया हुआ है। तो बस इतनी चीज के लिए मैटर करता है। अदरवाइज अगर आपकी डिग्री है, आप फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपकी उस टाइम पे वो जो स्पेसिफिक आपकी एबिलिटीज हैं वो शायद ऑन पेपर या ऑन सोशल मीडिया नहीं होती, वो प्रैक्टिकली आप जब टेस्ट देते हो, आप इंटरव्यूज देते हो, तो उसके थ्रू आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है। लिंक्डइन प्रोफाइलिंग जो है, लिंक्डइन प्रोफाइल जी जी उसमें भी मतलब एम्प्लॉयर्स आर वेरी एग्रेसिव नाउ हायरिंग फ्रॉम द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली देखें मैं सायरा तो अगर लिंक्डइन मैं बात प्रोफाइल के ऊपर इफ यू वुड लाइक टू शेड सम लाइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट। सायरा बेसिकली मैं जो मेन ज्यादा फोकस कर रही हूँ वो फ्रेश ग्रेजुएट्स का इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं कि हमने एक स्टार्ट करना होता है, हमें एक स्टार्ट करना होता है, हमें कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में आने के बाद भी पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, उन प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दें या उस पर नहीं करें। हाँ जैसे प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, ये है, उस पर आप अपनी क्लियर पिक्चर दें, अपनी क्लियर पिक्चर इन सेंस कि क्लियर ओवरऑल अपनी पिक्चर दें कि आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं या आपके मोटिव्स क्या हैं। तो वो कहीं समहाउ वो चीज तो कंसिडरेबल होती है, वो समहाउ एक वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक बैकग्राउंड चेक के लिए वो होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप कितने एक्टिव हैं या किस तरह से हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। जी सायरा, Yes, we have another question. His name is Amar, and he's asking a question that usually the engineering students, they are less confident and they are not good speakers, and they lack in communication. So how they can? आपकी आवाज थोड़ी स्किप हो रही है अंदर से। Am I supposed to repeat the question? जी जी। अच्छा मैं तो question repeat कर देती हूँ. There's a question from student named Amar. Okay. Again, no. And he's saying that mostly engineering students, they're less confident and they're not good speakers and they lack in communication. So how they can improve these skills? देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मैं समझती हूँ किसी भी आप डिपार्टमेंट से, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बहुत सारे आपको बेशुमार अब तो ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर वो आपको फोर्सली जो है वो आपको बुलवाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपको एवेल्युएट करते हैं। तो उसमें ये कि जैसे अगर I2C की स्पेसिफिकली हम बात करें कि जो ग्लोबली कनेक्टेड है, आपको किसी क्लाइंट के साथ डील करना होता है या किसी टेक्निकल स्टाफ के साथ मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आपको डील करना पड़ सकता है और इंटरनेशनली भी करना पड़ सकता है। तो आप डेफिनेटली ये चीज तो मैटर करती है और ये इम्पोर्टेंट भी है। एज इंडिविजुअल भी मैं एक चीज ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि एज इंडिविजुअल भी आप जॉब को बेशक एक दफा फॉर द टाइम बिंग साइड पे रख दें और
बीइंग स्टूडेंट भी आप, सॉरी बीइंग इंडिविजुअल भी आप ये चीज सोचें तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक पावरफुल जो है वो है आपका जो चैनल है, कि आप जिसके थ्रू जब आप अपनी बात ही कन्वे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि पीछे क्या रह जाएगा, कि आप अपना एक बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आप उसको बता सकते उसके अंदर। और ये बात कहना कि कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस लैक करना चाहिए फिर इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आपके पास एक वो कहते हैं ना एक ताकत है, एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसके ऊपर आपकी कमांड है, आपको फुली उसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप ये कि आप कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीकों से आप कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो अपनी इनहेंस कर सकते हैं। आप डिफरेंट, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, डिफरेंट ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन के जो वीडियोज आती हैं उसके अंदर वो मिलेगा, चीजें मिलेंगी, तो डेफिनेटली आप इस पे काम इस तरह से कर सकते हैं। आप जब ऑब्वियसली और समहाउ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू भी देते हैं तो आप अपना एक आप उस टाइम पे भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ऑन पेपर नहीं होती, आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको वो बताना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको डेफिनेटली, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आपको समहाउ तो एक टू सम एक्सटेंट, ठीक है, जैसे HR के लोग हैं या मार्केटिंग के लोग हैं, इनको जैसे ज्यादा बोलना पड़ता है या ज्यादा बात करनी पड़ती है कि कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंट्स के, IT डिपार्टमेंट्स का, लेकिन इंटरेक्शन तो होता है और उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छे तरीके से जो है वो इंटरेक्शन कर सकें। तो सबसे पहले तो ये चीज दिमाग से प्लीज निकालें कि आप इंजीनियर हैं या आप लेस कॉन्फिडेंट हैं। आप इंजीनियर हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर नहीं बनते। आप ये चीज ही सोचकर आप बोलना शुरू करें आज से। तो ऐसा है कि आप उस पे अपनी जो वीकनेसेस हैं उस पे अब तो आप वन, वो कहते हैं ना, एक क्लिक आपकी है कि आपको बेशुमार चीजें ऐसी मिलती हैं जिसके थ्रू आप अपनी वीकनेसेस को जो है वो आप ओवरकम कर सकते हैं और अपनी एबिलिटीज को जो है वो एनहांस कर सकते हैं। Absolutely right. And Amar, for your information and for the information of the rest of the students, we have a very active portal, placements.umt.edu.pk, and under the umbrella of OCLP Digital, we have a complete audio-visual toolkit available for the development and enhancement of your soft skills, and communication is one such skill. One last question, Zara, from you, which I would like to ask on the behalf of the student fraternity, that we see that, you know, this generation Z and millennials, they are very smart guys, and they love to join the organizations, and only those organizations which have certain purpose. So it's quite challenging to, you know, which are purpose driven, which they have a certain purpose. So it's quite challenging to, you know, engage and retain this generation, because they need you know, meaningful jobs, meaningful careers, purpose-driven careers, and a variety of you know, tasks which they can perform on the job, because they get bored quite quickly. So it's quite challenging to engage and retain such kind of talent. So how organizations and employers, you know, are supposed to keep such talent inspired, engaged, and retained, so that they don't emerge as frog jumpers, that if they get a raise of just 5,000 or 10,000, they switch the organization. So how are we going to play a role in that thing? देखिए सायरा, बिल्कुल हमारे यूथ में ओवरऑल भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर मैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा यूथ के साथ इंट्रैक्शन है, तो हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा यूथ में ये प्रॉब्लम आ रहा है वो टेम्पर इश्यूज आ रहे हैं। आप भी देखते होंगे इस चीज़ में, और ऑलरेडी वो लाइक स्मार्ट तो हैं, वो स्मार्ट हैं, लेकिन बड़ी जल्दी वो उस चीज़ से हट जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। लेकिन जब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात आती है तो वो उनके क्राइटेरिया, जैसे हम ITC की बात करें तो हमारी एक बड़े ऑथेंटिक और बड़े वो साइकोलॉजिकली एसोसिएटेड और डिफरेंट हमारे जो एवेल्यूएशन प्रोसेसेस होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने आप विलिंग हैं ये जॉब लेने के लिए, एंड थर्ड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, कितने कैपेबल हैं। तो वो आप सिलेक्शन क्राइटेरियाज में भी इवन के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अप्लाई किया होगा या करते होंगे, तो वो देखते होंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरियाज ही इस तरह के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं कि उसके थ्रू ही आपके सिलेक्शन, वो उसको उस तरह के स्टूडेंट्स को या उस तरह के एम्प्लॉयड को, अपने डिजायर एम्प्लॉयज को जो है
वो उसके अंदर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या उसके अंदर उसको मतलब वो उसके अंदर सिलेक्शन उसके अंदर हो जाती है उनकी। तो अब तो जो प्रोसेसेस हैं या हमारे प्रोसेसेस जो हैं जिसके अंदर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है, तो वो हमें वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वही हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज के अंदर वो स्टूडेंट्स को हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट जो है वो जॉब के लिए क्या है। अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि समटाइम्स हमें ये होता है कि हम क्योंकि जाहिर है हम एक जॉब की तलाश में होते हैं, हम बहुत सारी चीजों में अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारी चीजों में अप्लाई कर देते हैं। उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं आप भी चीजों को फॉरगो करते हैं। अच्छा, इसने पिछली दफा इस चीज के लिए अप्लाई किया था, तो इसको तो ये या इसका तो ये बैकग्राउंड नहीं था, या इसको तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो हमारी एज ए स्टूडेंट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं, कैपेबल इन अ सेंस कि लाइक होता है कि हमें किस चीज पे काम करना चाहिए। वही बात आ जाती है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। और अगर आप डेफिनेटली आप हार्ड वर्किंग हैं और आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तो एट द एंड इंशाल्लाह जो है वो आप उस चीज को अचीव करते हैं। तो कंपनी के एंड पे ये होता है कि कंपनी जो है अपने क्राइटेरियाज जो है वो मेंटेन करती है डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, डिफरेंट एवल्यूएशन प्रोसेसेस के थ्रू। इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो जब इंटरव्यू देते हैं किसी भी स्टूडेंट का या एक्सपीरियंस पर्सन का, तो वो उसके अंदर उसको जज कर लेते हैं। तो हमें, मेरे ख्याल से हमें एज इंडिविजुअल अपनी छोटी छोटी चीजों पे भी काम करना चाहिए। हमारे जो ये हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी है, या हमारे शॉर्ट ये टेम्पर इश्यूज हैं, हमें इन चीजों पे भी मेरे ख्याल से काम करना चाहिए कि हम जब एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो मैं समझती हूँ कि इवन कि अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो आप जैसे लाइक अगर मैं एक आईटी ग्रुप में मैं जॉब कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एक आईटी ग्रुप में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे इस एक नजरिए से, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ यहाँ पे, कि इस नजरिए से आप ये स्टार्ट करें कि मुझे अब ये मेरा एक जीरो से स्टार्ट इन अ सेंस ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं जो मुझे आता है, लेकिन जो नहीं आता वो डेफिनेटली बड़ा एक ओपन हार्टेडली बंदा उसको सीखने की कोशिश करे। उसको सीखने की, हर कंपनी की स्पेसिफिकेशंस हैं, डेकोरम्स हैं, एक स्पेसिफिक स्टाइल है, हमारी लिमिटेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। इवन कि हमारे मतलब प्रेजेंटेशंस भी हम अगर बनाते हैं तो हमारा ऊपर से नीचे अगर कोई ग्राफिकली कोई एक लाइन भी डिजाइन ऊपर से नीचे हो तो हमें अलाउ नहीं होता कि हम उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकें। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली आप उन चीजों के साथ आप कनेक्टेड रहें, उन चीजों के साथ आप देखें कि आप क्या लर्न कर सकते हैं। हम बड़ी जल्दी बीइंग यंग हम समझते हैं कि नहीं हमें सब कुछ आ गया, या हम समझते हैं हमें कुछ भी नहीं आता। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े दो एक्सट्रीम्स पे आपको ले जाते हैं। आप बहुत मॉडरेट होके हाँ चलें कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं पता था ग्राफिकली, अगर ये मार्केटिंग टीम से ये चीज अब अपग्रेडेड ये है, या अब ये नए लोगोस डिजाइन हो, ये मेरी आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी आपको वो कहते हैं ना कि कनेक्टेड रहना पड़ेगा कि ये चीज अब इस तरह से अपग्रेड होकर आ गई, ये चीज इस तरह से चेंज होकर आ गई है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आपको कौन सी एक स्पेसिफिक फील्ड में जो आपको काम करना है, आप उस पे जो है वो काम करें और उसके लिए अप्लाई करें। बाकी कंपनीज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी एवेल्यूएशन प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो सिलेक्शंस कर लेती हैं अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के थ्रू। जी सायरा, हमारे पास कोई और क्वेश्चन है? Thank you so much, Zara. थैंक यू We're running सायरा। short of time now, and it was really nice session. And I hope students gain valuable insights from it. And you're absolutely right. Students need to keep upskilling and reskilling themselves so that they can emerge as a star and they can win the careers of their choices. Thank you so very much, and we will love to थैंक यू collaborate with सायरा। I2C in the future as well. Thank you. Thank you थैंक so यू। much for the थैंक audience. यू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।